హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ద ఛానల్. బ్రిటిష్ వాళ్ళు హిమాచల్ని పాలిస్తున్నప్పుడు సిమ్లా రాజధానిగా ఎలా మారిందో మీకు తెలుసా? కానీ వాళ్ళ హృదయాన్ని కదిలించిన కోటల్లో ఒకటైన బెంటోని క్యాసిల్ గురించి ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం. ఈ గదుల్లో బ్రిటిష్ రాజులు వేసిన ప్లాన్ల వల్ల ఇండియా పాలన మారిందంటారు కొందరు. అటువంటి చరిత్ర ఉన్న ఈ ప్యాలెస్ గురించి మనం ఎంత మాట్లాడుకున్నా తక్కువే అని చెప్పుకోవాలి. నేనైతే ఇక్కడ సౌండ్ అండ్ లైట్ షోకి అటెండ్ అయ్యాను. ఇక్కడ జరిగిన ఈ కార్యక్రమాన్ని కంప్లీట్ గా వీడియో తీశాను. ఇదైతే చాలా లెంతీ వీడియో, బట్ మీరైతే కంప్లీట్గా డిసప్పాయింట్ అవ్వరు, ఎందుకంటే ఇది నా గ్యారంటీ. నేనైతే ఆల్మోస్ట్ 30 మినిట్స్ అయితే చాలా ఎంగేజింగ్గా చూశాను. ఎస్పెషల్లీ ఆ లైట్స్ అండ్ సౌండ్స్ వల్ల అయితే ఈ షో మరింత ఎంగేజింగ్గా అనిపించింది నాకైతే. అండ్ అలానే ఎవరైతే హిస్టరీ లవర్స్ వాళ్ళు డెఫినెట్లీ ఈ షోని ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈవెన్ మీకు హిస్టరీ గురించి అంత ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా ఆ లైట్స్ అండ్ సౌండ్స్ వల్ల అయితే చాలా ఎంగేజింగ్గా ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు మీరు చూసినట్టయితే డెఫినెట్లీ డిసప్పాయింట్ అవ్వరు. అలానే షిమ్లా ఎలా క్యాపిటల్ అయ్యింది హిమాచల్ ప్రదేశ్ కి, అలానే హిమాచల్ ప్రదేశ్ పంజాబ్ నుంచి ఎప్పుడు సపరేట్ అయ్యింది, అలానే సిమ్లా నుంచి కోల్కతాకి రైల్ ట్రాక్ ఎలా వేశారు, గాంధీజీ గారి గురించి, అలానే మిగతా ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ గురించి చాలా డీటెయిల్ గా ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. బట్ మీరు కూడా ఖచ్చితంగా వాచ్ చేసినట్టయితే మీ సిమ్లా ట్రిప్లో ఈ ప్లేస్కి వెళ్ళాలా లేదా అని ఈజీగా డిసైడ్ అవ్వచ్చు. బట్ నేనైతే డెఫినెట్లీ వర్త్ అని చెప్తాను. నాకు అంత బాగా నచ్చింది ఈ షో. ఎస్పెషల్లీ ఆ లైట్స్ అండ్ సౌండ్ అయితే కంప్లీట్లీ మెస్మరైజ్డ్ అని చెప్పుకోవాలి. అండ్ నేనైతే ఇలాంటి షోస్ ఆల్రెడీ చూశాను, బట్ ఈ షో కొంచెం యూనిక్గా అనిపించింది. చూస్తున్నారు కదా, చంద్రముఖి మహల్లా అనిపించింది నాకైతే స్టార్టింగ్లో ఈ ప్యాలెస్ని చూసేటప్పుడు. ఈ ప్యాలెస్లో మ్యూజియం కూడా ఉంది. సో మీరు కానీ వెళ్ళాలనుకునేటప్పుడు మార్నింగ్ వెళ్ళి అలానే ఈవినింగ్ ఈ షో చూసుకున్నట్టయితే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఈ టికెట్ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్టయితే మ్యూజియంకి అయితే 50 రూపీస్, ఈ సౌండ్ అండ్ లైట్ షోకి అయితే 100 రూపీస్, అలానే ఎగ్జిబిషన్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ, దాని టికెట్ వచ్చి 30 రూపీస్. మొత్తానికి నెక్స్ట్ 30 మినిట్స్ అయితే మీరు నాన్ స్టాప్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ చూడబోతున్నారు. అండ్ డెఫినెట్లీ స్కిప్ చేయకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి. అండ్ మీకైతే ఈ షో కంప్లీట్గా నచ్చుతుంది, అది నా గ్యారంటీ. लेकिन सच्चाई ये है कि मैं यहाँ इस पहाड़ी पर 19वीं शताब्दी से खड़ा हूँ। मेरी जिंदगी केवल मुझ तक ही सिमटी नहीं है, बल्कि ये शिमला की भी जिंदगी और दास्तां है। मेरा नाम बेंटनी है, ये ऐतिहासिक महल मैं ही हूँ। एक ऐसा भी समय था जब मैं यहाँ नहीं था। यहाँ कोई शहर नहीं था, ऊंची ऊंची इमारतें नहीं थी, बस एक पहाड़ी और घना जंगल। लेकिन उस पहाड़ी और जंगल में जीवन था, जीवंतता थी, भरपूर जिंदा दिली थी। ये पशु पक्षियों से गुलजार था। 18वीं शताब्दी के अंत में शिमला के पूर्व में नेपाल एक शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभर रहा था। 19वीं शताब्दी के पहले दशक में नेपाल के गोरखों ने आज के हिमाचल प्रदेश के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इन पहाड़ियों में इन साहसी योद्धाओं ने कुछ स्थानीय शासकों को पराजित किया। महाराज, हम क्या करें? अगर उन पर जरा सी भी आंच आई तो वो हमें मसल कर रख देंगे, इसमें कोई शक नहीं। अंग्रेज भारत में आ गए हैं। उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत शक्तिशाली है और उनके पास विशाल सेना है। चलिए उनसे सहायता मांगते हैं। उनका मदद करें? But why? ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स हमें लोगों का सहायता करने के लिए पैसा नहीं देते। हम यहाँ कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए पैसा कमाना आए हैं, न कि सुदूर पहाड़ियों में किसी का मदद करने के लिए। कुछ वर्षों तक कंपनी शांत रही, हिमालय की निचली पहाड़ियों में भारी परिवर्तन होते देखती रही। फिर पूरे यूरोप और भारत के अन्य हिस्सों में कई ऐसी घटनाएं घटी जिनके चलते ब्रिटिश को इन पहाड़ियों में सेनाएं भेजनी पड़ी। शिमला में जमकर लड़ाइयां हुई और मुठभेड़ हुई। पहाड़ी राजाओं और अंग्रेजों की जीत हुई और सन 1815-16 में गोरखा युद्ध समाप्त हुआ। 2 वर्षों के भीतर ही ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के अधिकारियों ने
इन पहाड़ियों को घूमना टटोलना शुरू कर दिया। What a delightful place. नोट का तरफ देखो, आपको बर्फ से ढका माउंटेन नजर आता है। चारों तरफ घना जंगल, घास का मैदान एंड crystal clear water. सर, क्यों न हम यहाँ घर बना लें? आप गर्मियों में तपिश बाटों की तुलना में इन पहाड़ों से बेहतर तरीके से अपना काम कर सकते हैं। कमाल का आइडिया! हम उस पहाड़ी पर घर बनाएगा। What's that? 1822 में मेरे बनने से कुछ दशक पहले कैप्टन चार्ल्स प्रैट कैनेडी ने पहला स्थायी घर बनाया, जहां आगे चलकर शिमला शहर बसा। 1831 में कैनेडी हाउस में एक मेहमान का यहां आना हुआ, जिसका नाम था विक्टर जैकपॉन्ट। ये गांव तो राइसो, निकामो और रोकियो के लिए एक रिसोर्ट है। Monsieur जैकमॉन्ट, एक बॉटनिस्ट होकर भी आप कितना अच्छा मजाक करते हैं। शुक्रिया कैप्टन केनेडी, मुझे हफ्तों से पानी का स्वाद नहीं मिला है। आपका भरा हुआ सेलर देख के मजा आ गया। कुछ वर्षों के भीतर मेहमान नवाज कैनेडी के यहाँ और भी कई खास मेहमान आए। गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहस का 1828 में आना हुआ और उसके अगले वर्ष ब्रिटिश इंडिया आर्मी के कमांडर इन चीफ लॉर्ड कॉम्बरमेयर यहाँ पधारे। तब तक ये एक छोटा सा गांव ही था। कॉम्बरमेयर का यहाँ आना शिमला की तस्वीर के लिए एक अच्छा संकेत था। यहाँ सबसे पहले इमारतों का निर्माण कार्य उन्होंने ही शुरू किया। एक झील के ऊपर उन्होंने एक वाटर टैंक और पुल बनवाया, जहां आज भी उनका नाम लिखा हुआ है। 2 वर्ष बाद 1830 में पटियाला और कंथाल के शासकों से यहाँ की मुख्य जमीनें ले ली गई, जिन पर यह शहर बसा है। ऐसा लगता है ये जमीन मेरे आगमन के लिए ही तैयार की जा रही थी। वर्ष 1831 तक इस जगह पर 60 घर थे। इस जगह को अलग अलग नामों से जाना जाता है, शुमला, शिमला और शिमला। हो सकता है कि ये नाम पटिया से पाटे गए और छोटे मंदिर शिमलिया या स्थानीय देवी शमला देवी के नाम पर ही, लेकिन ये चीज इतिहास के पन्नों पर कहीं खो गई है और इस बात को हम निश्चित तौर पर शायद कभी नहीं जान पाएंगे। मुझसे ठीक नीचे उतरने वाली सड़क पर कालीबाड़ी मंदिर है। मुख्य प्रतिमा काले रंग के संगमरमर की बनी है, जिसके पीछे शिला रूप में 2 मूर्तियां हैं। ऐसा माना जाता है कि ये प्रतिमाएं अपने मूल रूप में हैं, जो जाखू पहाड़ी पर स्थित मंदिर की है। कुछ रोम की तरह शिमला में भी 7-8 पहाड़ियां हैं। पश्चिम में प्रॉस्पेक्ट हिल है, जिस पर कामना देवी का मंदिर है। पश्चिम में ही समर हिल है और पॉटर्स हिल भी है। फिर ऑब्जर्वेटरी हिल है, जिसके ऊपर पुराना वाइसर ईगल लॉज है। इससे सटे ही इनवरम हिल है, जहां स्टेट म्यूजियम है। तो जाखू पहाड़ी है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। और फिर इलीसियम हिल है, इसी का विस्तार है। इस पर ऑकलैंड हाउस स्कूल व अन्य इमारतें हैं। और अंत में ये पहाड़ी है। जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, इसे बेंटनी हिल कहा जाता है। लेकिन शिमला में अलग अलग धर्मों के कई पवित्र स्थान हैं, जो एक दूसरे के आसपास ही हैं। क्राइस्ट चर्च शिमला का सबसे पुराना चर्च है और ये रिज पर है। यह आसमान में इस शहर के हस्ताक्षर जैसा लगता है। ठीक ऊपर की पहाड़ी पर आज जिस जगह ग्रैंड होटल है, 1829 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के रहने के लिए बेंटिक कासल बना था। बेंटनी यानी कि मैं, जहां हम बैठे हैं, थोड़ा नीचे था और इसका नाम भी माननीय के नाम पर ही था। 1880 के दशक में सिरमौर राज्य के राजा शमशेर प्रकाश ने शिमला में कई जमीनें खरीदी। यहाँ ये बता देना जरूरी है कि सिरमौर शिमला के ठीक पूर्व में स्थित है और यहाँ गोरखों के साथ कई भीषण लड़ाइयां लड़ी गई। फिर उन्हीं जमीनों में से एक कैप्टन गॉर्डन का भी कॉटेज था।
राजा शमशेर प्रकाश के सुपुत्र और राज्य के वारिस राजा सुरेंद्र प्रकाश ने अपनी निगरानी में से यहाँ एक आलीशान महल बनवाया। इसके लिए राजा ने मिस्टर टी.ई.जी. कूपर की सहायता ली और 20वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ शिमला के सुंदर किरदार का मैं भी एक हिस्सा बन गया। अब मुझे करीब से देखिए, मैं पूरी दरिया दिली के साथ बना हूं। मेरे सामने का हिस्सा वास्तुशिल्प कला का अनूठा नमूना है। मेरी बेल बूटेदार सजावटें और तराशे गए दीवार गिर देखने में एल्प्स की इमारतों जैसे लगते हैं। मेरी छत पर बुर्ज बने हुए हैं और बरामदे के ऊपर पगोड़ा है जिसमें सरदोजी का काम किया गया है। मेरी गिनती शिमला की प्रसिद्ध इमारतों में होती है। किसी ने मुझे सिरमौरी ब्रॉक शैली का अद्भुत रूप बताते हुए मेरी और मुझे बनाने वालों की उत्तम प्रशंसा भी की। साल दर साल बीतते चले गए और मेरी उम्र बढ़ती गई। मेरे किरदार में कई पहलू जुड़े। दोनों विश्व युद्धों के दौरान सिरमौर के राजाओं ने अंग्रेजी सरकार के सैनिकों के लिए मेरे उपयोग की अनुमति दी। दूसरे विश्व युद्ध में यहाँ प्रिजनर ऑफ वॉर सेक्शन रहा। ये ऑल इंडिया रेडियो से अटैच था। यहाँ से ज्यादातर इटली के उन बंदियों का संदेश भेजा जाता था जिन्हें धर्मशाला के पास यौल में दफना दिया गया था। आजादी के ठीक बाद मशहूर अखबार द ट्रिब्यून जो लाहौर में था यहाँ से छपना शुरू हो गया और इसके चंडीगढ़ शिफ्ट होने तक यही चलता रहा। ओ हाँ, क्या आपने बाहर की रेलिंग्स देखी जिस पर सिरमौर का राज्य चिन्ह अंकित है? ये रेलिंग्स सिरमौर की राजधानी नाहन में ढलवा लोहे से बनाई गई और ये ढलाई खाना हिमाचल में आने वाले प्रथम उद्योगों में से एक है। ये रेलिंग्स और शानदार दरवाजा लगने से पहले ही मैंने शिमला म्यूनिसिपैलिटी को वचन दिया था कि प्रॉपर्टी के भीतर लगे देवदार के विशाल पेड़ों को कोई नुकसान नहीं होगा और इनमें से 2 पूज्य वृक्ष अभी भी हैं। जाहिर है कि शिमला में बंदरों की भरमार है जो इन पहाड़ियों की टहनियों से झूला झूलते रहते हैं और अपनी हरकतों से मेरा मनोरंजन करते रहते हैं। भारत की आजादी के ठीक पहले मुझे दरभंगा महाराजा के हाथों सौंप दिया गया। 1957-58 में दरभंगा के महाराजा सर कामेश्वर सिंह ने पंजाब सरकार को एक प्रॉपर्टी किराए पर दी। शुरू में पंजाब सरकार की कई विंग्स और बाद में हिमाचल की पुलिस कई वर्षों तक यहाँ रही। शिमला इतना भव्य था कि हिल स्टेशंस की क्वीन कहलाता था। मेरे सामने वाली सड़क के उस पार टेलीफोन एक्सचेंज है और टेलीग्राफ ऑफिस है। ये दुनिया के पहले ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज में से एक था। पास ही में YWCA है और इस जगह पर कभी मौसम विज्ञान का कार्यालय था। उत्तर भारत के लिए 1857 की शुरुआत शांतिपूर्ण थी, लेकिन इस शांति की गोद में एक तूफान पड़ रहा था। ये तूफान भारत की आजादी की पहली लड़ाई के रूप में दिखा और इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रूर शासन की जड़ें हिला दी। सेवकों ने अभी बाजार में सुना है कि शिमला के पास के जचोक कंटोनमेंट के लोगों ने भी विद्रोह कर दिया है। बकवास, वो कभी भी नमक हरामी नहीं करेगा। वो हमारे खिलाफ खड़े नहीं होगा। शिमला बैंक यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही है, जहाँ आज ग्रैंड होटल है। अधिकांश यूरोपियंस वहां इकट्ठा हो गए थे। हालांकि भारत में अंग्रेजों के अन्याय और अत्याचार के खिलाफ इस विस्फोटक क्रांति का प्रभाव शिमला के अधिकांश हिस्सों में ना के बराबर है, लेकिन बाकी देश में इसकी आग भड़क चुकी है। इसके भयंकर परिणाम देखने को मिले और पूरे के पूरे गांव में आग लग गई। शक्तिशाली और लुटेरी ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया और सारे अधिकार व शक्तियां ब्रिटानिया हुकूमत ने अपने हाथों में ले ली। अब भारत सरकार के प्रमुख का पदनाम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसराय कर दिया गया। मुझको लगता है कि भारत का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सर चार्ल्स वुड शिमला को समर कैपिटल बनाने को मान जाएगा। I cannot stand the heat.
और मैं भारत में इसको काफी जीत चुका है। सर जॉन, उस उमस भरा कलकत्ता का गर्मी में जितना काम हम 10 दिन में पूरा करेगा वो तो यहाँ 1 दिन में हो जाएगा। 1864 में सर जॉन लॉरेंस के वायसरॉय बनने के बाद शिमला शहर आधिकारिक रूप से भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया। हालांकि इसे समर कैपिटल का नाम तो दिया गया, लेकिन वर्ष के अधिकांश समय सरकारी कामकाज यहीं से होता था और फिर जाड़े के महीनों में शिमला से कोसों दूर कलकत्ता चला जाता था और उसके बाद नई दिल्ली। ये गांव शक्ति का केंद्र बन गया था। वायसराय के शिमला के थंडर क्लाउड हाउस से धरती पर मनुष्य की आबादी के 5वें हिस्से पर शासन चला करता था। क्या कोई लड़ाई चल रही है बाबा? इतने सारे लोग हाथियों और घोड़ों पर बड़े बड़े बक्से लादकर कहाँ ले जा रहे हैं? वो बस भारत सरकार की फाइल्स और पेपर्स कलकत्ता से शिमला और शिमला से कलकत्ता ले जा रहे हैं। ओह, क्या तुम्हें पता है कि जब भारत सरकार कोई फैसला लेना नहीं चाहती तो वो क्या करती है? क्या करती है बाबा? फाइल पर एक टिप्पणी कर दी जाती है। कलकत्ता में चर्चा करें या शिमला में चर्चा करें और इस तरह वर्षों बीत जाते हैं। अच्छा, और तब तक उस अधिकारी के रिटायर होने या वापस इंग्लैंड जाने का समय हो जाता है। ओह, ऐसी बात। यदि आप कुछ बनना चाहते हैं तो शिमला जाइए। यदि आपको किसी से शादी करना है तो शिमला जाइए। ये ब्रिटिश एम्पायर के सबसे शानदार आउटपोस्ट है और वाइस रीगल लॉज का न्योता कभी भी मत ठुकराना। शिमला में अपनी तकदीर आजमाने वाले आकर्षक नवयुवकों का जमावड़ा रखता है। यहाँ ग्रास विडोज यानी कि अपने पति द्वारा छोड़ दी गई या पति से दूर रह रही ऐसी शादीशुदा औरतें आती थी जो मैदानों की तपती धूप और अपने पतियों दोनों से ही छुटकारा चाहती थी। फिशिंग फ्लीट के सदस्यों के अविवाहित ब्रिटिश नवयुवतियां पानी के जहाजों से यहाँ पतियों की तलाश में उनकी यात्राओं के पहाड़ों के संकरे रास्तों के पीछे आकर समाप्त हो जाती थी। वहाँ ब्लैक हार्ट्स नामक एक गुप्त क्लब था जिसके सदस्यों को ओपन रिलेशनशिप में रहने की छूट नहीं थी, लेकिन इसके उलट खुले संबंधों को कभी रोका नहीं जा सकता। इस महीने पिकनिक, डांस, थिएट्रिकल्स आदि कई बार हुए और मैंने जमकर मजा किया। रुडयार्ड किपलिंग ने शिमला से अपनी आंट को लिखे एक पत्र में यही बात कही। भविष्य के नामी लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता किपलिंग ने शहर के गौरवमयी वर्षों के बारे में लिखा। उन्होंने शिमला से साहित्य के कुछ अमर किरदार रचे, जैसे कि मिस हॉक्सबी। मिस हॉक्सबी असली जिंदगी से जुड़ी किरदार थी और इनमें साम जैसी धूर्तता, मर्दों जैसी तर्कशीलता, बच्चों जैसी निर्भीकता और औरतों का प्रिय चरित्र सभी मौजूद थे। रुडयार्ड किपलिंग इस शहर से जुड़े बड़े साहित्यकारों में अकेले नहीं थे। समय के साथ इस सूची में कई बड़े नाम जुड़े, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता और भारत के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर शामिल रहे। एम काय, इदरीश शाह, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, मोहन राकेश, भीष्म सानी और रस्किन बॉन्ड जैसे लेखकों और उपन्यासकारों का संबंध भी शिमला से रहा। एमेचर ड्रामेटिक क्लब के सदस्य पेशे से कलाकार हैं, और उनमें से कुछ शौकिया तौर पर सरकारी नौकरी में हैं। किसी भी प्रोफेशनल कंपनी के लिए शिमला में कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि स्थानीय शौकिया कलाकार किराए पर थिएटर नहीं देने वाले। इसका कारण ये है कि वो हमेशा रिहर्सल करते रहते हैं और भूमिकाएं बदलते रहते हैं और उनमें प्रमुख भूमिकाओं को लेकर लगातार टकरार होता रहता है। 20वीं शताब्दी के शुरू में लेखक डोज ने शिमला के मशहूर एमेचर ड्रामेटिक क्लब के बारे में यही कहा था। वाइसरीगल लॉज के ही आर्किटेक्ट हेनरी अर्विन ने टाउन हॉल को भी डिजाइन किया था। गॉथिक शैली में निर्मित ये विशाल टाउन हॉल 1887 में बनकर तैयार हुआ। इस इमारत में गेटी थिएटर और क्लब के अलावा अन्य संस्थाएं भी थी। इस थिएटर में अनगिनत जानी मानी हस्तियों ने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए और यहाँ से कई कलाकार अपने करियर में ऊंचाइयां छू चुके हैं। वाइसराय लॉर्ड लिटन ने वॉलपोल नामक नाटक लिखा। बॉय स्काउट मूवमेंट के संस्थापक रॉबर्ट बेडन पावल और रुडयार्ड किपलिंग व मैरी मार्गरेट जैसे लेखक यहाँ अभिनय कर चुके हैं।
कलाकार अमृता शेरगिल 7 वर्षों तक शिमला में रही। उन्होंने भी युवावस्था में यहाँ अभिनय की। ऐसा माना जाता है कि गायक केएल सहगल ने अपना पहला सार्वजनिक कार्यक्रम गेटी में ही प्रस्तुत किया। कैंडल्स, पृथ्वीराज कपूर, अनुपम खेर और कई अन्य नाम इस महान थिएटर से जुड़े हैं। 2009 में इसका व्यापक रूप से रेनोवेशन किया गया और आज गेटी थिएटर कॉम्प्लेक्स शिमला के सांस्कृतिक जीवन का केंद्र है। शताब्दी के अंत में दुनिया तेजी से बदल रही थी। पहली औद्योगिक क्रांति का प्रभाव दुनिया के कोने कोने में दिख रहा था। स्टीम रेल इसी बदलाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। अभी हमें और कितने सर्वे करने हैं? कालका से शिमला के बीच रेलवे लाइन बिछाने में कितना समय लगेगा? बढ़ते रहो, हम सुरंगों और कुछ अलाइनमेंट्स में फंसे हैं। साहिब, हमें एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो शायद हमारी मदद कर सके। उसका नाम भलकू है साहिब। उसने 1850 के दशक में ग्रेट हिंदुस्तान तिब्बत रोड बनाने में काम किया था। ठीक है, चलकर उससे बात करते हैं और देखता है कि क्या होते हैं। बिल्कुल सही मिस्टर हर्ट। सर, शिमला को गढ़ने में सिर्फ अमीर और ताकतवर लोगों का ही योगदान नहीं था। कालका शिमला रेलवे लाइन बनाने में हजारों की संख्या में मजदूरों ने काम किया। लोगों की माने तो जब रेल पटरी का निर्माण शुरू हुआ तब भलकू, जिसने 1850 में ग्रेट हिंदुस्तान तिब्बत रोड बनाने में काम किया था, उम्र दराज हो चुका था। कहा जाता है कि चीफ इंजीनियर और रेलवे के एजेंट एच.एस. हैरिंगटन के आगे आगे एक लंबे कद के कर्मचारी के साथ चलते हुए उसने रेलवे लाइन निकालने का रास्ता दिखाया। स्थानीय लोरियों में बताया जाता है कि उनके ग्राम देवता ने सपने में आकर उन्हें इस रेलवे लाइन का रास्ता बताया था। और कुछ लोगों का मानना है कि कालका और शिमला के बीच 19 स्टेशनों से गुजरने वाली इस पटरी का खाका उन्होंने ही तैयार किया। आज कालका शिमला रेलवे लाइन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये बहुत अच्छा बात है कि रेलवे लाइन बिछ गया है, लेकिन हमारा सामने काफी चिंताजनक स्थितियां हैं। ब्रिटिश राज को टी पार्टी की तरह नहीं चलाया जा सकता है। एनाडेल में गर्मी का ये बेहद सुहावना दिन है। हमारे चारों ओर फैले देवदार के ये सुंदर पेड़ इस माहौल को काफी खुशनुमा बनाते हैं। वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन के साथ इस पवेलियन में मौजूद होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। क्यों मिस्टर यंग हस्बैंड, आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मैं सचमुच यहाँ एक बहुत बड़े काम से आया है। अनंडेल में झुरमुटों के बीच बने जिमखाने को निहारते हुए वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन और फ्रांसिस यंग हस्बैंड ने तिब्बत पर हमला करने की योजना बनाई। इससे कुछ साल पहले ही अनंडेल में चुपचाप एक अन्य घटना घट चुकी थी। ऐसा माना जाता है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यहाँ पिकनिक मनाने आए थे, जहाँ उनके मन में एक ऐसा संगठन बनाने का विचार आया जिससे अंग्रेजों और भारतीयों को करीब लाया जा सके। उनके द्वारा बनाया गया कांग्रेस नामक ये संगठन एक अलग ही दिशा में मुड़ गया और जल्दी ही उसकी अगुवाई में भारत का स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हुआ। एक बात और, डुरंट फुटबॉल टूर्नामेंट जो आज भी खेला जाता है की शुरुआत अनंडेल से हुई। ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान को बांटने वाली डुरंट लाइन खींचने का निर्णय यही शिमला में हुआ था। अंग्रेज भारतीयों को सरकार में प्रतिनिधित्व देने से मुकर चुके थे। जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थों को मौत के घाट उतारने वाला जनरल डायर कुछ समय शिमला में भी रह चुका था। अब शिमला की पहाड़ियों से भी आजादी के लिए आवाजें उठ रही हैं। सबसे
पावरफुल गवर्नमेंट को हराने का ड्रीम करता है। वंदे मातरम, वंदे। मैंने इस पहाड़ी से देखा है कि हजारों वर्षों की हुकूमत कैसे सिर्फ 3 दशकों के भीतर समाप्त हो गई। 1921 में भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड रेडिंग ने गांधी जी को शिमला आने के लिए निमंत्रण दिया था। उसी वर्ष दिसंबर में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के पूर्व भारत में शांति का माहौल कायम करने की कोशिश में ये बैठक बुलाई गई थी। दमनकारी रॉलेट एक्ट 1919 के विरोध में देश भर में गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन की लहर से अंग्रेजी राज पहले ही घबराया हुआ था। इस काले कानून के तहत किसी भी भारतीय को बिना कोई कारण बताए अनिश्चित समय के लिए जेल में डाला जा सकता था। उनका कहना था, नो दलील, नो वकील, नो अपील। इस दौरे के बाद कई अन्य राष्ट्रवादी नेता शिमला में 1947 तक आते रहे। जिस वर्ष भारत आजाद हुआ, पंडित नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय, अब्दुल गफ्फार खान, गोविंद वल्लभ भाई पंत और मौलाना आजाद ने नियमित रूप से यहाँ रह रहे अंग्रेज उच्चाधिकारियों को जनमत से अवगत कराया। कुछ समय के लिए पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना का भी शिमला में एक घर था। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ सरकार का शिमला आना जाना बंद हो गया, लेकिन यहाँ अनेक बैठकें और सम्मेलन आयोजित होते रहे। 1939 में ही शिमला की पहाड़ियों में हिमालय रियासती प्रजामंडल एक राष्ट्रवादी संगठन के रूप में सक्रिय हो गया। शिमला में आजादी के आंदोलन के अग्रणी नेताओं में भागमल स्वथा, पंडित पदम देव, मनशाराम, डॉक्टर केदारनाथ, लाला हरीश चंद्र और अमरीकी सत्यानंद स्टोक्स शामिल रहे। महिलाओं ने भी जमकर साथ दिया। लक्ष्मी देवी, कमला देवी, सत्यवती और लज्जा वर्मा जैसी महिलाओं ने इस स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आजादी के बाद सिरमौर के डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। 1947 में वायसराय लॉर्ड वेवल ने शिमला सम्मेलन का प्रस्ताव रखा। उम्मीद थी कि इस सम्मेलन से देश को एकजुट रखते हुए भारत की आजादी के स्वरूप का हल निकलेगा। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। भारत की आजादी और भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन से जुड़े कई प्रस्तावों को शिमला में निश्चित रूप दिया गया। 1947 के शुरू में भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का आगमन हुआ। उनके कार्यकाल के दौरान यूनाइटेड सर्विसेज क्लब में कई सत्र आयोजित हुए। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग ने देश का बंटवारा किया और पाकिस्तान का जन्म हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत गुलामी की बेड़ियों से आजाद हो गया। तेजी से वर्ष दर वर्ष बीतते चले गए और 1 नवंबर 1966 को शिमला पंजाब से अलग होकर हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी। फिर 1972 में बांस कोट में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। बांस कोट ही आज का राजभवन है। विस यूनिटा फोर्टियर यानी एकता में बल। पहले के सिरमौर रियासत का यही ध्येय वाक्य था, जिनका राज्य चिन्ह इस आलीशान इमारत की रेलिंग्स पर अंकित है। और शिमला या शिमला, इस बारे में क्या कहेंगे? आप किसी भी नाम से इस जगह को पुकार सकते हैं। कुछ ही ऐसे देश होंगे जहां के किसी अकेले शहर का इतिहास शिमला जैसा समृद्ध है। ఎలా అనిపించింది ఈ అద్భుతమైన షో? అండ్ డెఫినెట్లీ మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. అలానే నేనైతే నా హిమాచల్ ప్రదేశ్ ట్రిప్లో డే 2లో సిమ్లాలో చూశాను ఈ షోని.
అండ్ కంప్లీట్లీ నేనైతే స్పెల్ బౌండ్ అని చెప్పుకోవాలి, అంత బాగా నచ్చింది. నేనైతే ఆల్రెడీ ఇలాంటి షోనే అక్షర్ధామ్లో కూడా చూశాను, అక్కడైతే వీడియో చేసే అవకాశం లేక నా మెమొరీస్లో పొందుపరుచుకున్నాను. ఈసారి అయితే వీడియోని మీ ముందు పెడుతున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి, మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు.